Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we started with our second chapter, that is the Phule Ambedkarism. Excuse me. In that, we started with introduction, then thoughts on equality and Mahatma Phule's thoughts on equality. See, अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे क्या चलना चाहिए, क्या नहीं एंड ऑल. और डॉक्टर अंबेडकर इज़ फाउंडर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने अपने एक स्पीच में, दैट वाज इन 1948, स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, हैड डिस्क्राइब डेमोक्रेसी इन इंडिया एज only a top dressing on an Indian soil which is essentially undemocratic. See, caste is a system of graded inequality and grade exploitation. It embodies a built-in mechanism to push people towards a status-ridden hierarchy downgrading, and this process results in a systematic dehumanization of people at the lower rungs. Then we saw thoughts on equality, right? Naturally, inequality is the fact. क्यों? अपने आप पे इनइक्वालिटी है और ये बहुत जगह पे इनइक्वालिटी है, ये एक फैक्ट ही है. ह्यूमन बीइंग क्या है? डिफर है. हर कोई इंसान एक जैसा होता है क्या? नहीं. ह्यूमन बीइंग डिफर इन फिजिकल, मेंटल एंड मॉरल कैपेसिटीज, राइट? इक्वालिटी इज नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर लिबर्टी, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी. इक्वालिटी मीन्स absence of special privilege and educate and equal opportunities. In 19th century, old customs, traditions and superstitions created inequality in Hindu society. Then Mahatma Phule's thought on equality. See, Mahatma Phule क्या था? He was one of the great reformist, right? उसने inequality, injustice के खिलाफ बहुत ज़्यादा रिवोल्ट वगैरह किया था. He was a great exponent of social equality. He occupied a unique position among the social reformers of Maharashtra in the 19th century. Jyotiba Phule revolted against the unjust caste system under which millions of people had suffered for centuries. Jyotiba Phule was born on 1827 in Satara district. He was from Mali community. उनके फादर क्या थे? वेजिटेबल वेंडर थे पूना में, और उनकी मॉम, she passed away when Jyotiba Phule was hardly a year old. After completing the primary education, Jyotiba had to leave the school and help his father by working on the family farm. Then in 1841 he got admission in Scotch Mission High School at Pune. Equality thoughts of Mahatma Phule are given below. Unjust caste system. फर्स्ट क्या था उनका? अनजस्ट कास्ट सिस्टम के बारे में उन्होंने बोला है. फुले मेड पावरफुल अपील टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड एंटर द कास्ट सिस्टम. सीधा फुले क्या बोलता है? ये जो अनजस्ट कास्ट सिस्टम क्या है, इन सबको हटा देना चाहिए, ये सब इनजस्टिस वगैरह नहीं चाहिए. The Dalit at that time did not have any political, social and educational and economic rights. उस वक्त दलितों के को क्या था? कुछ भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स कुछ भी नहीं थे. Then dual morality, he condemned the dual morality of the Brahmin system. He said equal opportunity should get to all people. Natural rights, he said, by birth all are free and equal. All human beings have natural rights. He was militant advocate of human rights to the downtrodden. Protested against man-made inequality. He protested against the man-made inequality which was rooted in Hindu caste system. He struggled fearlessly to implement the reform in the Hindu society. Then remove inequality complex. He tried to remove inferiority complex from the mind of the people. Started a school for the Dalit. He stressed on emancipation of downtrodden. In 1968, he decided to give access to untouchable to a small bathing tank near his house. Then strike at the school structure. Jyotiba's chief aim was to strike at the social structure. It was a social structure. Towards the end, he was determined to remove ignorance, illiteracy and prejudice and caste-based relief among the lower caste
and free them from the mental slavery resulting from centuries of Brahmin domination. Established the Satyashodak Samaj. So he established the Satyashodak Samaj, which sowed the seed of development of the masses and promoted the spread of rational thinking. Equality of men and women. Fulle believed in the equality of men and women. He did not merely stress on the equality of men only, but he said both should be treated equally. Propagated universal humanism. He propagated universal humanism based on value of freedom, equality, and universal brotherhood. Then now we will study about the Dr. Ambedkar. सी डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में तो अपन ने पढ़ा, आपने सुना ही होगा, लाइक ही इज़ नथिंग न्यू टू ऑल. सो लेट्स बिगिन. डॉक्टर अम्बेडकर 1891-1956 was the champion of human rights and emancipator of the untouchables. डॉक्टर अम्बेडकर कब बॉर्न हुए थे? 1891 में बॉर्न हुए थे एंड he died in 1956 and he was the champion of human rights and emancipator of the untouchables. Brahma Rao Ramji Ambedkar, popularly known as Baba Saheb. भीम राव रामजी अम्बेडकर, जिसको अपन आज अम्बेडकर के नाम से जानते हैं. अपने यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे रहेंगे जिनको एक्चुअल में बाबा साहेब अम्बेडकर पूरा नाम क्या है क्या नहीं कुछ नहीं मालूम, बस ही इज़ द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इतना ही मालूम है. बट एक्चुअल नाम क्या था उनका? भीमराव रामजी अम्बेडकर. ही वॉज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1891. कब बॉर्न हुए थे अम्बेडकर? ही वॉज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1891. He spent his whole life fighting against discrimination, the system of चतुर्वर्णा एंड द हिंदू कास्ट सिस्टम. ये बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करने में बिता दी, राइट. एंड ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ चतुर्वर्णास एंड द हिंदू कास्ट सिस्टम. ही बिलोंग टू द महार कास्ट which were treated as untouchable and subjected to intense social economic discrimination. See, अब ये बाबा साहेब अम्बेडकर कौन से क्लास को बिलोंग करते थे? महार क्लास, which were treated untouchable, जिनको अपन अनटचेबल माना जाता था. जैसे आज अपन हरिजन इन सबको क्या बोलते, पहले ज़माने में उनको अनटचेबल्स बुलाए जाते थे. मतलब उनको कोई टच नहीं करता था, उनका सब अलग रखा जाता था. अगर किसी कुएं में से उन्होंने पानी ले लिया तो वो कुआं पूरा अशुद्ध माना जाता था, अशुद्ध हो गया ऐसे बोला जाता था. लाइक पहले के ज़माने में ये सब बहुत था, अनटचेबिलिटी वगैरह बहुत था. आज अगर आप बोलोगे अनटचेबिलिटी वगैरह ये टर्म यूज़ करोगे और इतना डिस्क्रिमिनेट करोगे, इट इज़ सेड टू बी एन क्राइम. आज के डेट में इट इज़ सेड टू बी अ क्राइम, बट उस वक्त अपना कास्ट सिस्टम ऐसे ही था. तो डॉक्टर अम्बेडकर क्या थे? वही महार कास्ट, जिनको जो उस वक्त अनटचेबल ट्रीट किया जाता था, उस कास्ट को बिलोंग करते थे और उनके साथ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ जाता था. हिज मिशन इन लाइफ वॉज टू एस्टेब्लिश अ न्यू सोसाइटी ऑर्डर्ड बेस्ड ऑन जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी. ही वॉज नॉट जस्ट अ थिंकर बट पुट हिज थॉट्स इन एक्शन. जब उन्होंने देखते थे वो कि कितना अपना समाज कितना ख़राब है, कितना इसमें भेदभाव किया जाता है एंड ऑल, तो उन्होंने डिसाइड किया कि बाबा, उन्होंने एक मिशन अपने लाइफ में एक मिशन किया कि बाबा अपने को एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जहाँ पे देयर वुड बी एन जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी. और उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते भी थे और सिर्फ वो सोच के अपने आइडियाज़ नहीं बनाते थे. ही बॉट हिज थॉट्स, हिज आइडियाज़ इनटू एक्शन ऑल्सो. Then he was not just a thinker but put his thought in action. About the British rule in India, he gave priority to social reforms. See, जो social reforms थे उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी. मतलब उन्होंने ये सोशल रिफॉर्म्स जो भी थे उनको एक इम्पोर्टेंस दिया था. उस वक्त सोशल रिफॉर्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे अपने इंडिपेंडेंस के लिए. तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या किया? उनको एक इम्पोर्टेंस दिया था. He criticized the British rule for failing in its duty
टू अपलिफ्ट हिज अनटचेबिलिटी। सी, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी अगेंस्ट थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी बहुत अगेंस्ट गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश लोग भी ये अनटचेबिलिटी निकालने में इंडियन सोसाइटी की कोई मदद नहीं कर रहे थे। He believed if priority is given to political emancipation, it would mean transfer of power from foreign rule to upper class Hindu। See, अब वो क्या बोल रहे थे, अगर आप पॉलिटिकल को अपलिफ्ट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने को पावर ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। जैसे आज सारी सत्ता ब्रिटिशर्स के हाथ में है एंड दिस ब्रिटिशर आर नोन एज द फॉरेन रूलर्स। आज अपना देश कौन चला रहा है? फॉरेन रूलर चला रहे हैं। अगर अपना देश अगर अपन खुद चलाए या फिर अपर कास्ट के हाथ में दे दे, हिंदुओं के हाथ में दे दे, तभी ठीक है, तभी अपना पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा हो सकता है, तभी अपना देश सुधर सकता है। He insisted that in free India, the untouchable community must get a proper share in the power structure. Otherwise, independence would merely means rule by the upper caste. See, अब उनका आइडिया क्या था, जब अपना इंडिया, जब अपन इंडिया फ्री करने की बात कर रहे हैं, जब अपना इंडिया फ्री हो जाए, तब क्या है, ये जो अनटचेबिलिटी वगैरह है अपनी कम्युनिटी में, ये हटा देनी चाहिए अपन ने, और सबको इक्वल शेयर मिलना चाहिए, राइट। अभी पावर वगैरह सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहनी चाहिए, नहीं तो क्या है, फिर इंडिपेंडेंस का कोई मतलब ही नहीं। फिर अपना देश तो अपन फ्री करने का और अपर क्लास के हाथ में दे देने का, तो क्या मतलब है इसका? तो ये इंडिपेंडेंस किसी काम की है क्या? नहीं है। ये इंडिपेंडेंस नहीं काम की। तो जब भी अपन फ्री इंडिया बनाएंगे तो इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। देन suggested state socialism. Dr. Ambedkar propounded the idea of state socialism. See, Dr. Ambedkar ने क्या किया? He came up with the idea of state socialism. He had developed this theory of state socialism in his book State and Missionary. See, और उन्होंने ये जो उनका थेरी है वो कौन से बुक में लिखा हुआ है आज? स्टेट एंड माइनॉरिटीज, सॉरी, इट इज स्टेट एंड माइनॉरिटीज, नॉट मिशनरीज, आई एम सॉरी। He had developed this theory of state socialism in his book State and Minorities. State socialism means that the state would implement a socialist program by controlling the industries and agriculture sector. See, state socialism का मीनिंग क्या है? यहाँ पे स्टेट क्या करता है? स्टेट सब कुछ इम्प्लीमेंट करेगा, सोशल प्रोग्राम सब इम्प्लीमेंट करेगा। कैसे? बाय कंट्रोलिंग द इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर स्टेट सेक्टर। अभी स्टेट के हाथ में जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सब स्टेट के हाथ में जाएगी और स्टेट इन चीज़ों का ध्यान रखेगा। टू अचीव इकोनॉमिक इक्वालिटी, डॉक्टर अम्बेडकर प्रपोज्ड स्टेट सोशलिज्म। से अभी इकोनॉमिक, अपने को इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहिए। आज अपना कैसा है, सब कुछ इक्वालिटी के नाम पे आज अपने पास कुछ भी नहीं है। तो अगर अपने को इक्वालिटी चाहिए तो डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं? स्टेट सोशलिज्म ज़रूरी है। मतलब आप स्टेट के हाथ में सब दो, लाइक राइट फ्रॉम इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर, सब कुछ स्टेट के हाथ में जाना चाहिए। अगर स्टेट के हाथ में दोगे तो क्या है, कहीं बहुत थोड़ी बहुत इक्वालिटी दिखेगी आपको। It investigates putting an obligation on the state to plan the economic life of the people on life which would lead highest point of productivity without closing any avenue to private enterprises and also provide for the equitable distribution of wealth. अभी आप बोल रहे हो स्टेट के हाथ में सब देने का। अब स्टेट के हाथ में सब दे देंगे तो ऐसा है कि स्टेट एक्सप्लॉइट नहीं करेगा? स्टेट भी तो एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है ना, और सही बात है। तो उसमें भी वो पॉइंट डालते हैं, अगर स्टेट अपने को पूरा बोलता है कि वो कैसे काम करने वाला है, क्या काम करने वाला है, अगर स्टेट ये सब कुछ अपने को प्लान बताता है, बोलता है, तब भी स्टेट के हाथ में सब कुछ पावर देने का, राइट। क्योंकि अपने को पता है आगे कैसे क्या होने वाला है, और सब कुछ प्राइवेट के हाथ में नहीं देने का, थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर भी रखने का और पब्लिक सेक्टर भी रखने का, और इस बात का ध्यान रखने का है कि बाबा देयर इज़ एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो भी वेल्थ है
it should be distributed equally. He stated that men differ from each other with respect to heredity. See, सब एक जैसे रहते हैं क्या? नहीं. कोई आदमी किसी चीज़ में होशियार रहता है तो कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में होशियार रहता है, कोई प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में होशियार रहता है. तो वो बोल रहा है हर इंसान अलग अलग रहता है विद रिस्पेक्ट टू हेरिडिटी, सोशल एटमॉस्फेयर एंड हिज ओन एफर्ट्स, बट दे शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटी. से social atmosphere and his own efforts, but they should be given equal opportunity. See, हर कोई एक जैसा एटमॉस्फेयर से आता है क्या? नहीं. कोई क्या है बहुत ज़्यादा होशियार रहता है. कौन क्या करता है एक बार पढ़ा तो याद रहता है. कोई बहुत ज़्यादा होशियार नहीं रहता है बट वो उतनी मेहनत करता है, राइट. उतनी मेहनत यानी क्या? वो एक आंसर 4 बार लर्न करेगा बट एकदम परफेक्ट हो जाएगा. तो इसका मतलब ये है क्या? उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए? नहीं, आपको हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी ही चाहिए सो दैट इवन ही कैन डेवलप हिज पर्सनैलिटी. He believed that it is not enough to enumerate fundamental rights in the constitution, as unemployment and fear of the starvation may compel individual to lose his right. See, अभी ये क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर अम्बेडकर किसमें बिलीव करते थे कि फंडामेंटल राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो तो देने ही चाहिए. उसमें से कोई भी राइट्स आपको छीनना नहीं है. अगर अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कुछ भी आप राइट्स ले लोगे, लोगों के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट आ गया तो लोग डर जाएंगे, लोग भूख के मारे क्या करेंगे? दे विल लूज देयर राइट्स. Therefore, the state should create necessary economic condition in which the people would be able to enjoy those rights. तो फिर स्टेट को क्या करना है? यहाँ पे वैसे इकोनॉमिक कंडीशंस रखनी है जहाँ पे लोगों को उनके राइट्स पूरे मिले और वो अच्छे से खा पी के रहे. लाइक वो अनएम्प्लॉयमेंट, उनको उन पर अनएम्प्लॉयमेंट ना आए. एवरीबडी शुड बी गिवन फुललेस लिबर्टी टू चूज द प्रोफेशन ऑफ हिज चॉइस. सी, हर किसी को लिबर्टी देनी चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से अपना काम करे. जो उसको काम करना है वो काम करने देना. जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे फादर बिजनेसमैन है तो मेरा भाई भी बिजनेसमैन होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है ना, राइट. अगर मेरे भाई को जॉब करना है तो ही शुड बी फ्री टू डू सो. So everyone should be given full liberty to choose the profession of his choice. In order to avoid exploitation of one class by another, he believed that there should be equality distribution of wealth, for which he gives certain suggestions like nationalization of key and basic industries which will be owned and run by the state, agriculture to be state industry, etc. See, he believed that there should be equal, जो भी wealth है it should be distributed equally, and he suggested that उसके लिए क्या है? We should do nationalization, जहाँ पे industries क्या है? It will be owned and run by the state, and agriculture should be state industry. Dr. Ambedkar and drafting of the Indian Constitution. He was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly of India. See, डॉक्टर अम्बेडकर क्या था? वही चेयरमैन थे. ही वॉज द मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बना है इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. ही इज सेड टू बी द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनना था तब अपन ने कमिटी बनाई थी, ड्राफ्टिंग कमिटी. वी वुड हैव सेट अप फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एंड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. हिज लीगल expertise and knowledge of law of different countries was very helpful in framing the Indian Constitution. See, अब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लीगल एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑफ लॉज. सी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज वो एक लॉयर थे, अच्छे लॉयर भी थे. हाँ, तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था ऑफ लॉ वगैरह एंड ऑल, एंड वो बहुत अलग अलग कंट्रीज़ घूम के आए थे और सब कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने समझा था. इसीलिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बहुत सोच समझ के ध्यान से फ्रेम किया है. सो हिज लीगल एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वॉज वेरी हेल्पफुल इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी ट्रीटेड एज द बेसिक एंड स्केट डॉक्यूमेंट एंड एवरीबडी शुड वर्क अकॉर्डिंगली. सी,
कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज़ आवर बेसिक और एक स्केट डॉक्यूमेंट है, और हर किसी ने अच्छे से काम करना चाहिए उस वक्त. To avoid the misuse of constitution, he made detailed provisions in the constitution. See, अभी अपना constitution है, अपने constitution का no one should misuse it. So what he did, he made certain provisions in the constitution. Like अपन बोलते हैं ना, it is written in our constitution provision A3 बोल के, तो उसके अंदर सारा, तो उसने ऐसे डिटेल में प्रोविजंस बनाए हैं ताकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन कोई मिसयूज ना करे. प्रोवाइडेड for fundamental rights of people and give guarantee of liberty, equality and justice. See, provided for fundamental rights. See, he gave fundamental rights of the people and उसने दे बोला कि बाबा लिबर्टी, जस्टिस और इक्वालिटी ये सबको मिलेगा. लाइक उस वक्त जो अनटचेबिलिटी थी, अब अनटचेबिलिटी कुछ भी नहीं रही. एंड ही मेड प्रोवाइडेड फंडामेंटल, हर किसी को फंडामेंटल राइट्स मिलेगा और सबको लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस भी मिलेगा. आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज जुडिशियल प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सी, आर्टिकल 32 of the Indian Constitution which guarantees judicial protection to fundamental rights. Such protection makes the rights real and meaningful. See, ये जो protections जो दिए हैं उसने, ये protections ज़रूरी है so that it makes the right real and meaningful. Incorporated many safeguards for the minorities like reservation policy. See, अभी उसने बहुत से सेफगार्ड्स किए, माइनॉरिटी लोगों को बहुत से सेफ्टी जोन में रखा है, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी. आज अपने पास OPC, ST, अदर कास्ट वगैरह जो भी है, जो भी रिजर्वेशन है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर. प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, thus अम्बेडकर प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सी, डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया है. लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग रहा तभी सब कुछ स्ट्रॉन्ग रहेगा, तभी आपका देश अच्छे से चल पाएगा. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो बाकी जो गवर्नमेंट है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, बाकी स्टेट गवर्नमेंट, ये भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे. सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर कंट्री टू रन. सो व्हाट ही मेड, सो ही मेड वेरी श्योर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द ideal society. Dr. Ambedkar visualized an ideal society based on liberty, equality and fraternity. See, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या सोचा, उनको कैसी सोसाइटी चाहिए, वी शुड हैव सम आइडल सोसाइटी. एंड वो आइडल सोसाइटी कैसी है, देयर शुड बी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर आइडल सोसाइटी. एन आइडल सोसाइटी इन हिज व्यू शुड बी मोबाइल, शुड बी फुल ऑफ चैनल्स फॉर covering a change taking place in one part to the other part. See, अब ये आइडल सोसाइटी कैसे बनेगी, जब अपन हर कुछ जहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट चेंज हो रहे हैं उन सबको अपन अच्छे से लोगों तक पहुँचाएं. जैसे बाबा ये सोसाइटी देखो कितनी अच्छी हो गई, यहाँ से अनटचेबिलिटी निकल गई है, यहाँ एवरीवन इज़ गिवन योर इक्वल अपॉर्चुनिटी. जब अपन ये बात दूसरे सोसाइटी को पता चले, दूसरे पार्ट ऑफ कंट्री में पता चले, तब भी सब चेंज होगा ना. तो ये जो चैनल जो था वो एकदम इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग चैनल सो दैट इट कन्वे अ चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस इन वन पार्ट टू द अदर पार्ट. देयर शुड बी वेरिड एंड फ्री पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट विद अदर मोड्स ऑफ एसोसिएशन. सी, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कॉन्टैक्ट करने के लिए अलग अलग एसोसिएशन चाहिए जहाँ से अपन कॉन्टैक्ट कर सके और जहाँ पे अपना अपन फ्री व्यू पॉइंट्स रख सके अपन अपना, और अपने जो कुछ अच्छे फ्री पॉइंट्स वगैरह रहेंगे तो वो बाकी लोगों तक भी पहुँचे अच्छे से. उसके लिए एक एसोसिएशंस बननी चाहिए. द सोसाइटी शुड ऑल्सो बी प्यूरल इन कैरेक्टर. अब ये सोसाइटी जो बनेगी इट शुड बी प्यूरल इन कैरेक्टर. इट शुड नॉट बी स्टैटिक, रिजिड, ट्रेडिशनल एंड ऑर्थोडॉक्स इन बिहेवियर. ये जो सोसाइटी कैसे रह जी, ये जो सोसाइटी बनी है इट शुड नॉट बी स्टैटिक, रिजिड, ट्रेडिशनल एंड ऑर्थोडॉक्स इन बिहेवियर. जो नई सोसाइटी बन रही है ये क्या है, ये ट्रेडिशनल रहनी चाहिए, जैसे पुराने कस्टम वो फॉलो करने वाली नहीं चाहिए, ना ही ऑर्थोडॉक्स चाहिए. लाइक बहुत पुराना सोचते हैं,
लाइक अनटचेबिलिटी एंड ऑल, वो जब सोचते हैं वैसे सोसाइटी आज नहीं चाहिए अपने को. It should also give free and equal chance to each and everybody for their progress and bind all the people into one common culture bond. See, अब जो नई सोसाइटी अपनी बनी है ये कैसे चाहिए? इट शुड बी फेयर एंड इट शुड गिव एन इक्वल चांस टू ईच एंड एवरीबडी फॉर देयर प्रोग्रेस. सी, हर किसी को प्रोग्रेस करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और हर लोग एक दूसरे के साथ एक कल्चर से जुड़े रहने चाहिए. लाइक दे शुड हैव द फीलिंग लाइक पापा आई एम इंडियन. तो वो एक जो कल्चर है अपना उससे हर कोई जुड़ा रहना चाहिए. द यूनिटी ऑफ कल्चर ही बिलीव्ड कुड बी डेवलप ओनली व्हेन द सोसाइटी इज बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस. सी, अब ये जो यूनिटी ऑफ कल्चर वो बोल रहे, अब ये जो अपना कल्चर है इन सब से कब अपन सब एक अच्छे से जुड़ पाएंगे? जब अपना सोसाइटी इट शुड बी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस. We'll wind up our lecture here. Next lecture we'll be studying the next point.